عید رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج مجھے موقع مل ہی گیا ہے کہ میں اوپننگ بھی خود کر رہا ہوں. بیچ میں بھی جویریہ جو ہے نا, آج جویریہ کو اتنا خاموش میں نے ان 20 دنوں میں کبھی نہیں دیکھا, لیکن ٹھیک ہے, میں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. جناب, عید رمضان میں اس وقت وہ وقت آ گیا ہے جب ہم آپ کے ذہن کو آزماتے ہیں, یعنی ہماری ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے مختلف انسٹیٹیوٹ سے پاکستان کے بچے بچیاں اور بڑے بوڑھیاں بھی اکثر ایسے بھی آ جاتے ہیں, لیکن مختلف اداروں سے مختلف بچے جوان لوگ آتے ہیں, اور ہم ان کو 3 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, 3 راؤنڈس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا قرآن و سنت کا ہوتا ہے, اور اس میں ہم ان سے 1 منٹ کے اندر جتنے ممکن ہو سکتے ہیں سوال پوچھتے ہیں. 3 ٹیمز ہیں ہمارے ساتھ, جس میں ٹیم اے ہے جن کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے, جو ہیں صوبیہ عابد اور ثنا مقصود. تالیاں بجائیے جناب. ٹیم بی میں این ای ڈی یونیورسٹی سے عبد البصیر صاحب ہیں اور ربال احمد صاحب ہیں, سر سید یونیورسٹی کراچی. اوکے, کراچی. اور ٹیم سی سے ہیں جناب انڈس یونیورسٹی سے محمد عامر اور علی احمد خان. آپ کو خوش آمدید عید رمضان کے اس سیگمنٹ میں. جی تو پہلا راؤنڈ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ سے کر رہے ہیں. یو ہیو 1 منٹ. ایک منٹ کے اندر آپ نے سوچنے میں کم سے کم وقت ضائع کرنا. قرآن پاک میں مسجد زرار کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ توبہ. جواب درست ہے. اس نسخہ قرآن کا نام بتائیے جو حضرت زید بن حارث نے لکھا تھا. مصحف ابی بکر یا مصحف الامام تھا. جواب درست. مصحف ابی بکر, جواب درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے آخری سریہ, یعنی کہ وہ جنگ جس میں وہ خود شامل نہیں ہوئے تھے, کس طرف بھیجا تھا؟ سریہ موتا. جواب درست ہے, موتا کی طرف. جی جواب. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ 70. جواب درست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الشہادتین کا لقب کس صحابی کو عطا فرمایا؟ ریپیٹ کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الشہادتین کا لقب کس صحابی کو عطا فرمایا؟ حضرت حمزہ. نہیں, سوچیے. صحابی تھے. جی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بن ثابت. ان کے نام کیا؟ حسن بن ثابت. حضرت خزیمہ بن ثابت. لیکن پھر بھی آپ بہت اچھا کھیلے. تالیاں اس ٹیم کے لیے. بالکل, بہت اچھا. جناب, ٹیم بی سے میرا پہلا سوال ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ 1 منٹ ہے آپ کے اندر اسے سوچنے میں زیادہ وقت نہ ہو. اگر آپ پاس کر دیا تو ہم دوبارہ اس سوال پر آئیں گے, ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجیے گا کہ یہ ٹائم کنزیوم نہ کریں آپ. قرآن مجید کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ اثر. سورہ الاسراء. ام الکتاب کس سورہ کو کہا گیا؟ سورہ یاسین. سورہ فاتحہ. فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کے کس بیٹے نے اسلام قبول کیا؟ پاس. نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوے میں شرکت کی؟ سوال ریپیٹ کریں گے آپ نے نبوت کے بعد سب سے پہلے کس غزوے میں شرکت کی؟ ابوا. جواب درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ جھنڈا تھا, اس کا نام بتائیے. پاس. اچھا, میں دوبارہ پوچھتا ہوں. قرآن مجید کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام؟ سورہ اسراء. آپ نے جواب دیا صحیح. ام الکتاب کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. جواب درست. فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کس بیٹے نے اسلام قبول کیا؟ حضرت مروہ. حضرت اکرامہ. اور رسول اللہ کے پاس ایک سیاہ جھنڈا تھا, اس کا نام عقاب. اچھا, وہ جو 2 جواب تھے نا, وہ آپ سورہ فاتحہ اور سورۃ الاسراء آپ بتا چکے تھے. میں بتا چکا تھا. جی. او اچھا, سوری, کیونکہ انہوں نے غلط جواب دیا تھا, اس لیے آپ نے بتا دیا تھا. یس, بالکل. جی, کنٹرول روم, یہ بات ذرا نوٹ کر لیجیے گا. جی. ٹیم سی, پہلا سوال. قرآن کریم کی کس سورہ میں مسجد قباء کی شان بیان کی گئی ہے؟ سورہ اعراف. لفظ سورہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ سورت کے لغوی معنی کیا ہے اردو میں؟ بار بار تلاوت کرنا. نہیں, رفعت و بلندی. فتح مکہ کے موقع پر اہل قریش نے صلح کے غرض سے کس کو اپنا سفیر بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ بھیجا تھا؟ پاس کرو. فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر میں انصار کا جھنڈا کن صحابی کے پاس تھا؟ ان صحابی کا نام بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سن کر فوت ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن, صحیح مان لیتے ہیں. نہیں, انہوں نے کچھ اور نام نام غلط لیا. عبداللہ تک صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, عبداللہ بن انیس تھے وہ. ایک جواب درست ہوا آپ کا. قرآن کریم کی کس سورت میں مسجد قباء کا ذکر ہے؟ مسجد قباء کا ذکر ہے.
सूरह तौबा में। अच्छा जी, फ़तह मक्का के मौके पर अहले कुरैश ने सुलह की गर्ज से अबू सुफियान को अपना सफ़ीर बनाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। और फ़तह मक्का के मौके पर इस्लामी लश्कर में अंसार का झंडा जिन सहाबी ने रहता था उनका नाम था हज़रत साद बिन उबादा। जनाब, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगला मरला है, उसके बाद भी एक और मरला है, अक्सर पूरी काया पलट जाती है। तो हम देखते हैं कि स्कोर बोर्ड की सूरत हाल क्या है जनाब। टीम ए ने हासिल किए 40, टीम बी ने 10 और टीम सी ने 10। जनाब राउंड 2 की तरफ आते हैं। इसमें आपके पास 15 सेकंड होते हैं हमारे इशारे बताने के बाद। तो आपने पूछना है कि हम इशारों की मदद से आपको क्या सवाल पूछ रहे हैं, आपने जवाब देना है, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड्स। करेक्ट? ओके जी जनाब, इस राउंड का नाम है छुपे खजाने, और छुपे खजाने के लिए मेरा पहला सवाल टीम ए से है ये। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। इलाहाबाद, वकील, जंग आज़ादी हिंद, लिसानुल असर। अकबर इलाहाबादी। जवाब दुरुस्त, यहाँ आप तालियां बजा सकते हैं। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। लखनऊ, HEJ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, सितारा इम्तियाज, अजमलीन। शबीर अहमद उस्मान। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी। अगला सवाल है किताबों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। अहियाउल उलूम, मकाशिफुल क़ुलूब, तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा, अल मुनक़्क़िज़। अहियाउल उलूम, मकाशिफुल क़ुलूब, तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा, अल मुनक़्क़िज़। अल मुनक़्क़िज़। इमाम गज़ाली। जनाब अगला आपके पास। जी, टीम बी, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। गवर्नर जनरल ढाका, नवाब सलीमुल्लाह, 22 अक्टूबर 1964, 1964। सिकंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। जी जी, लियाकत अली खान, दूसरे वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। अलीगढ़ कॉलेज, आयात बय्यनात, उर्दू डिफेंस सोसाइटी, सैयद मेहदी अली ख़ान। शख्सियत का नाम बताना। सर सैयद अहमद खान। रिपीट करेंगे आप? मेहदी अली ख़ान उनका असल नाम था। कुछ मुल्क आता है नाम में। बाबुल मुल्क। मोहसिनुल मुल्क। इशारों की मदद से शहर का नाम बताइए। खैबर, बाड़ा मार्केट, किस्सा खानी बाजार, दंदासा। लोशे। शहर का नाम दोबारा रिपीट करें। दंदासा, किस्सा खानी बाजार, बाड़ा मार्केट, खैबर, नासिर पेशावर। खान जान। लोशे। लोशे। पेशावर। नस्वार बोल देते, समझ जाते हैं। नस्वार बोल देते हैं। अच्छा क्या करती है। सी। जनाब आपके पास, सी आपके पास। मेरे पास। जी टीम सी से मेरा पहला सवाल है। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। उम्मुल कुलसूम बिनते अबू बकर, उम्मे कुलसूम बिनते अबू बकर, अशरा मुबशरा, साबिकून अल-अव्वलून, बसरा। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। लिसानुल मिल्लत, हैदराबाद दक्कन, बेहतरीन मुकर्रिर, बहादुराबाद कराची। नवाब बहादुर यार जंग। जवाब दुरुस्त। अरे दे दिया, सही दे दिया। इशारों की मदद से मुल्क का नाम बताइए। मशरकी एशिया, रिंगट या रिंगित, सुल्तान तनकू जाफर, पिनांग। शहर का नाम, मुल्क का नाम है। मुल्क का नाम। म्यांमार, बर्मा, कुआलालंपुर। मलेशिया, ये मेरा क्लू था आपके लिए। चलिए ठीक है जी। रिंगिट वहाँ की करेंसी है और मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया से उसका ताल्लुक है। मलेशिया। एग्जाम दे रहे हैं अभी। अच्छा जी, आप लोग तो खैर जवाब देने आते रहे। आप लोगों से पहले हम भी बहुत पढ़ते हैं इसको। एग्जाम होता है हमारा भी, इतने मुश्किल अल्फाज हमारी होते उर्दू हैं। का भी इम्तिहान होता है, तलफ्फुज़ का भी इम्तिहान होता है। जनाब जी वही लोग कह रहे हैं स्कोर कार्ड दिखाएं। डॉक्टर साहब गुस्से में कह रहे हैं स्कोर कार्ड दिखाएं पहले। सर टीम ए है जी 50, टीम बी है 20 और टीम सी ने हासिल किया है 20।
भाई टीम ए माशाल्लाह सबसे आगे है आज। अच्छा टीम क्या ए बात। इतनी टेंशन में क्यों लग रही है आप? 3 सवालों के जवाब नहीं दिए इसलिए परेशान है ना? लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपका स्कोर सबसे ज्यादा उनके है। सारे आते थे, अपने नहीं आए। उनके सारे आते थे। यही होता है। आपको गलत कार्ड तो नहीं दे दिया था कहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं। जनाब, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए ऐदे रमजान। ऐद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं ऐद रमज़ान की ट्रांसमिशन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर एक साथ। और हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा खूबसूरत ख़ानदान भी मौजूद है, और मैं उस ख़ानदान में ऐसे ही हूँ जैसे आपने सुना होगा ना कि पति पत्नी और वो जी, आपने वो भी सुना होगा कि कुंडी ना खड़का सोनिया। इसमें आपने कुंडी खड़कानी है, सीधा अंदर मत आइएगा, इसलिए कि ये बजर राउंड है। बजर राउंड में क्या होता है कि आपको सवालों के जवाब देने के लिए पहले घंटी या बजर बजानी पड़ती है। सवाल साइमल्टेनियसली तीनों टीम से एक साथ होंगे, इसलिए ये मत समझिएगा कि पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ। जो बजर बजाएगा और सही जवाब देगा वो होगा इनाम का हकदार। बिल्कुल जी। तो मैं पूछूं पहले? जी। जनाब, आर यू रेडी? घंटी बजा के जरा मुझे दिखाइए। वाह, क्या टे टे टा 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 टा। पूरा म्यूजिकल। पूरा म्यूजिक जी। सब अरेंजमेंट किया। अच्छा, तो जनाब आर यू रेडी? आपकी घंटी बजी, बजाइए। ठीक है, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का पेशा क्या था? डेंटिस्ट। ना 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 ना, घंटी पहले किसने बजाई? ए ने बजाई। ए ने बजाई। डेंटिस्ट थी। डेंटिस्ट थी, जवाब दुरुस्त है। अमेरिका का कौमी खेल कौन सा है? बी ने बजाई। बी ने बजाई, गलत बजाई। बेसबॉल। बेसबॉल, जवाब दुरुस्त है। टीम ए एक दफा फिर आगे जा रही है। कोलंबो किस मुल्क का दारुल हुकूमत? बी ने बजाई। श्रीलंका। श्रीलंका, जवाब दुरुस्त है। चुप कराएं चुप कराएं इसको। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को एशियन ब्रैडमैन कहा जाता है? बी। अनीफ मोहम्मद। नो 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 नो, दिस इज नॉट गोना हैपन नेक्स्ट टाइम। जवाब वो दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग नहीं देंगे। अब्दुल हफीज कारदार। वो गलत दे रहे हैं वैसे। आप बता दीजिए, चलिए आप ही रहेंगे घंटी बजाने से, तो कम मार दें। जहीर अब्बास। जवाब दुरुस्त है। वो दे चुके हैं लेकिन तो ज़हीर अब्बास ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन हाँ, उन्होंने आपने कहा जवाब दे दिया था ना, आपने वैसे ही फजूल में ये इनसे सवाल जाने के बाद कैंसिल आप कर दें भाई, ये सवाल कैंसिल कर दो दें। हाथ कीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस सन में हुई? बी। बी। बी ने बजाया पहले, बी ने पहले बजाया। 1951। 1951, जवाब दुरुस्त। दुनिया में बेहतरीन आमों की इकसाम कौन से मुल्क में पाई जाती हैं? लंगड़ा, अनवर अटॉल, सिंधड़ी। पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, ये नाम अपने अपने से लग रहे थे ना, कुछ सुने सुने से हैं। जनाब, जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान में दुनिया में बेहतरीन आमों की, और आपको पता है कि लेडी डायना और शहजादा चार्ल्स की जब शादी हुई थी तो पाकिस्तान से आम गए थे। अच्छा, ऐसे हम अपने आमों का अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। हमें तो खट्टे मिल रहे हैं आजकल। हैं? हाँ, बाहर अब सब वो अच्छे अंगूर वाले हैं, बाहर वो जा आपको- चुके हैं, वो अच्छे अंगूर वाले होते हैं, बाहर जो जा खट्टे चुके होते हैं। हैं। आम तो वैसे लेकिन पाकिस्तान का आम इस वक्त अमेरिका में जो हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने भी आम खा के इजाज़त दी अमेरिका में आम मंगवाने की। अच्छा जनाब, मैंने दुनिया में आम खाए हैं, लेकिन है। पाकिस्तान से पाकिस्तान जैसा बेहतरीन आम कहीं नहीं है। हर खास के लिए आम। जी, तो ये जवाब सी का सही था हमारे। बिल्कुल। तो इस तरह अब आप पूछें। जी, सवाल ये है कि हिंदुस्तान की पहली मुसलमान खातून हुक्मरान का क्या नाम था? ए। रजिया सुल्ताना। जवाब दुरुस्त है। ये रजिया सुल्तान थी मेरा ख्याल है। रजिया सुल्ताना। सुल्ताना थी। अच्छा, इंसान के जिस्म में औसतन कितने लीटर खून होता है? बी। 200 गैलन। हैं? 70%। ड्रामा है क्या पूरा? कितने लीटर? इंसान है या सी। कंटेनर? 6 लीटर 6 लीटर तकरीबन। 5 से 6 लीटर। जवाब दुरुस्त, सी का जवाब दुरुस्त है। और एक सर्टेन अमाउंट होता है ब्लड का कि अगर वो निकल जाए तो अक्सर जो डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है वो ये कि एक खास अमाउंट होता है आपके ब्लड का, आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन। अगर वो निकल जाए तो फिर आप, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आप नहीं मतलब कोई भी इंसान अल्लाह को प्यारा हो सकता है, इसलिए ब्लड का एक सर्टेन अमाउंट मेंटेन करना जरूरी है। जी सर। अच्छा, एक शेर का मैं पहला मिसरा कहूँगा, उस दूसरा आप बताएंगे। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो। जी, पहला मिसरा। याद था इनको।
वो जो हम में तुम वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सेकंड यही था। वही तुम्हें याद- एक नहीं, नहीं, मैं तुमने करा था तुम्हें याद हो कि ना याद किसी और को आता है किसी यहाँ और को आता है? नहीं आता। वो वही पिंक, वही वो से आगे बता रही हूँ वही से आगे क्या है? जी। वही वादा लेकिन निभाह का तुम्हें याद चलिए हो करीब है, कि ना वही यानी वादा निभाह का। सही है। याद, हाँ, मान भाई इनको दे देते हैं हम पहल की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल। बहर से नहीं गिरने दिया उन्होंने, वजन कायम रखा। हाथ उठा के उन्होंने वैसे जवाब बहुत अच्छे चलती बस में जिस तरह आप चढ़ी है ना वाकई बहुत अच्छा। अच्छा जी, अगला सवाल है कि इंसानी खून के अहम जो यानी प्लाज्मा में कितने फीसद पानी होता है? जी 10%। 90%। कितना? 92। चले चले मान, चलो, सही है। सही है। टीम सी का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि एक मेरा एक्सप्रेस पे सेगमेंट चलता है, उसका नाम बता सकते हैं आप? ऐद रमजान का। ये ज़ियारत वगैरह जो जी, हज जी, शरीफ की होती है, जी, नाम बताइए। सेगमेंट का नाम सॉरी यार हैं? आपको तो अगर हमें आप भी वो ये नाम याद करने में काफी दिन इसमें लग तो गए बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उन्होंने हमारी ट्रांसमिशन नहीं देखी जवेरिया, ये तो पर्सनल हमारा इनसे हो नहीं, गया। जियारतें बता रहे हैं, देखिए नाम। हैं। अच्छा, नाम एक्चुअली थोड़ा टफ। तो इसका मतलब है कि देखी है ज़ियारतें आप उसका देखी, ठीक है। ये नाम थोड़ा टफ से एक्चुअली। टफ तो नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ कि उसका ताल्लुक कुछ मरकज से है। यहाँ किसी को पता है? नंबर भी आता है कोई मरकज़े दो जहां। मरकज़े दो जहां। मरकज से दो जहां। मरकज जी। दो जहां। तो जी हाँ, रिजल्ट देख स्कोर लें? बोर्ड की सूरत हाल जी, हम स्कोर देखते बोर्ड। हैं। जनाब जनाब क्या है क्या है क्या है? हाँ, टीम सी ने हासिल किए 50, टीम बी ने हासिल किए 40 और फातेह करार पाई टीम ए 80 मार्क्स के साथ। वाह वाह। वाह, जबरदस्त। जी तो इनाम अनाउंस कर दूं मैं? तीसरे नंबर पे आने जी, वाली टीम तीसरे पोजीशन हासिल करने वाले को एक्सप्रेस की तरफ से जूसर ब्लेंडर, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर और फोटाइल का गिफ्ट, ये तीसरे नंबर के लिए है। जी। और नंबर तालियां। नंबर 2 दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों में वेस्ट पॉइंट का चॉपर एक्सप्रेस की तरफ से, फूड फूड फैक्ट्री, वीगोटेल। वीगोटेल का एक मोबाइल फोन और कर्शी का गिफ्ट हैम्पर और लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर। और जीतने वाली टीम और हमारी। पहले पायदान यानी कि पहले पहुंचने वाली पहले मनोरंजन जिसे हमने जी पहली पोजीशन हासिल करने वालों ने वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ऐद रमज़ान और इस वक्त वो वक्त हुआ है जब मैंने आपको शुरू में भी इंट्रोड्यूस कराया था कि एक ऐसी खूबसूरत नात आपके सामने आप पेश करेंगे। सऊद भाई आ जाओ जवेरिया और जन्नत और इब्राहिम। ये नात मैंने कई दफ़ा सुनी है, आपने भी कई दफ़ा सुनी होगी, लेकिन इस नात की मैं ख़ास बात आपको बताऊं कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ कलाम था जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में अरबी में पढ़ा था सऊद भाई की बहन ज़ोहरा नूरानी ने। और आपने हमेशा इस नात को, इस नशीद को जो है अरबिक में भी सुना होगा, उर्दू में भी सुना होगा, लेकिन आज पहली दफ़ा इसकी ट्रांसलेशन, क्योंकि ये ज़बान और ये जो लिसान होती है, इसकी क़ैद जो होती है, ये तो हमारे यहाँ ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जो भी दिल से पढ़े वो उसके करीब है। और क्योंकि हम मुसलमान जो हैं उसको समझने वाले, जानने वाले हर मुल्क और हर कौम में हैं, तो अंग्रेज़ी समझने वाले भी लोग हैं। और उनके लिए आज जन्नत ने कुछ एडिशन किया है इस नात के अंदर, यानी इस नात की जो है वो कुछ कलाम जो है वो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके जन्नत भी पढ़ेंगी। इमरान, ये नात मेरी बड़ी सिस्टर ने पढ़ी थी, ज़ोहरा नूरानी ने अरबी में और उर्दू में। अच्छा। इसकी मौसीकी दी थी मेहदी ज़हीर साहब वो जिन्होंने पीटीवी का पहला वो जो सिग्नेचर ट्यून थी वो भी कंपोज की थी। वो जो उनकी वो थी, और इसको जो प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था वो शोएब मंसूर साहब ने किया था। अच्छा। शोएब मंसूर साहब सबसे पहले उनकी जो शुरुआत थी वो नातों से थी। तभी तो अल्लाह ने उनको इतनी तरक्की दी। बिल्कुल वाकई। बिल्कुल। वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम है। मैं तो जब सुनता हूँ, और क्या खूबसूरत लिखा हुआ कलाम है, माशाल्लाह। मतलब दिल नहीं भरता इसको सुनने से। ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, अमेजिंगली रिटन कॉम्पोजिशन, जो लिरिक्स हैं इसके। आज हम सादत हासिल करेंगे सऊद भाई से, जवेरिया से, और पहली दफ़ा जन्नत भी हमारे साथ पढ़ेंगी। जनाब सुनते हैं।
खुश रहो, हमेशा इसी तरह नाते पढ़ती रहो। आमीन आमीन। चले चलो किचन में चलो, काम करो। बहुत हो गया, जाओ। हाँ वही जा रही हूँ किचन में जा रही हूँ। बहुत पढ़ ली नाते, जाओ अब ना आओ। आज तो ये खानदान हम देखेंगे कि भाई मैं अकेली क्यों आऊँ, सब आएंगे हाँ किचन सब में आएंगे, मेरे साथ। सब आएंगे। एक तो काउंटर के पीछे छुप जाएगा। आज पका के आ रहा है, आज तो मुझे भी नहीं पता। काउंटर के आगे रहो तुम, है तुम तो हाँ पीछे से- सही है। नहीं नहीं, मुंह नजर आएगा, मुंह नजर आएगा, ऐसे नहीं। उधर चूल्हे के पास चले चूल्हे जाओ। से हाँ, पीछे हाँ। रहो। चूल्हे से थोड़ा, पिछली दफा याद है क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं, सब तेल- कुछ गिर वैसे तेल की तरफ दूर ही रखो, बच्चों को तुम्हारा कुछ पता नहीं, एकदम छींटे उड़े। जी आज हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन। डायनामाइट? चिकन। Oh my God, this is so अच्छा मेरी बेटी को best. डायनामाइट प्रॉन्स बहुत पसंद है। देखो फटे ना ये डायनामाइट। नहीं होगा। इसमें है चिकन दरमियानी साइज के टुकड़े 250 ग्राम, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तमाम अज्जा को इनको मिक्स करना है हमने। फिर है जी मैदा आधी प्याली, कॉर्नफ्लावर आधी प्याली, नमक हस्बे जायका, तेल डीप फ्राइंग करने के लिए। और जी सॉस बनाने के लिए है मेयोनीज़ आधी प्याली, पेपरिका पाउडर आधी चाय की चमची, और जी सॉस है 2 खाने के चमचे। और अज्जा को इनको सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आज मेरी रेसिपी नहीं, ये आज हमारे कुक जो हैं वो उनकी, क्या नाम है आपका, एहसन की रेसिपी है आज जी। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को कॉर्नफ्लावर में कोटिंग करेंगे चिकन की। तेल गरम करके चिकन को डीप फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन कलर हो जाए तो चिकन तेल से निकाल लेंगे और एक बाउल में डालेंगे और ऊपर से सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्लेट या प्याली में निकालेंगे, सलाद के पत्तों के साथ हम पेश करेंगे। और मैं चाहूँगी कि यहाँ से आप आ जाएं ज़रा। नहीं आप ये जी चश्मे में जो बैठी हैं, आइए जवेरी एक सवाल पूछना चाह रहा था। आ जाए जी। मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने इंग्रेडिएंट पढ़ी हैं, अगर इसी को हम डाल दें तो बन नहीं जाएगी? ये फिर खाएंगे आप, तावीज़ नहीं खाना पड़ेगा फिर आपको। ये आपकी हेल्प करेंगी। और मैं चाहूँगी कि आप, क्या नाम है आपका, सबीन जो है वो आज मेरी हेल्प करेंगी। आज मेरी फैमिली आई हुई तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो आप बनाएंगी, ठीक है? सही है, ये आपकी हेल्प करेंगे इसमें। सही सबीन है? का मूड नहीं लग रहा वैसे। सबीन आप खुश हैं इस अमल से? ये जबरदस्ती आपके बंदूक की नोक पे आपको लेकर आया गया यहाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सप्रेस रमजान की टीम ने आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की कि आप यहाँ, तो बता दीजिए खुश होकर, ताकि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबीन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। आप बनाना शुरू कीजिए और हम यहाँ पर बात करते हैं अब जरा जामे शीरी की। सऊद भाई से कहो जरा, आज जरा बात करें जामे शीरी। अच्छा जामे शीरी जी, बताइए। अब तो रट जाना चाहिए सऊद आपको, अगर आप हमारा तो आपका शो नहीं देख रहे होते मेरा ख्याल है, उस वक्त मूवी। वैसे तो गर्मियों के लिए बेहतरीन अनमोल चीज़ है, इसलिए कि अक्सर मेहमान आते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, चाय से बेहतर है कि जामे शीरी पानी में घोल के और मिक्स करके और बर्फ़ डाल के पिला दें। चाय से बेहतर है। हाँ चाय से बेहतर है, क्योंकि जितनी गर्मी और मौसम है, गैस का खर्चा नहीं होता। नहीं वैसे भी ना थोड़ा ठंडक पहुंचाती है जिस्म को, रूह को। तो ये बहुत ज़रूरी है और रमज़ान के लिए बेहतरीन तोहफा है। 100% खालिस इख्तियार से तैयार करता, जिसके अंदर खालिस गुलाब और संदल का अर्क मौजूद है। इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया गया। जनाब जामे शीरी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरे दिन रोज़े की जो होती है वो प्यास नहीं लगती, और इसमें आपको जब आप इफ्तार पे यूज़ करते हैं इसको तो आपकी वो सारी रिकवर हो जाती है, आपकी एनर्जी जो आपने यूज़ की होती है पूरा दिन। और जी लेमन मैक्स 3 गुना ज़्यादा ग्रीस कटिंग पाउडर, जो कि लेमन मैक्स बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ जो ज़िद्दी से ज़िद्दे बर्तनों का करे, आसानी से सफाया, और जो बर्तनों में स्मेल रह जाती है वो मिनटों में निकाले। और वो स्मेल वो है जिसमें ये दोनों बहुत चीखते हैं। ग्लास में से स्मेल क्यों आ रही है, सही से धो। आप लेमन मैक्स इस्तेमाल कीजिए, जो मुंह पे जो ग्रीस आ जाती है गर्मियों में उसका इलाज नहीं है। वैसे अक्सर आप जैसे खाते हैं ना ऑयली खाना, वैसे हमारे घर भी लेमन मैक्स ही यूज़ होता है। भाई आज मुझे भी दे देना लेमन मैक्स। लेकिन अंडे की स्मेल सबसे बुरी होती है। हाँ, और वो ग्लासेस में भी आ जाती है, लेकिन लेमन मैक्स से वो 2 मिनट में जो है सारी और जनाब की सारी। सुकराल का मैं आपको बताता चलूं कि सुकराल जो है वो शुगर सब्स्टिट्यूट है। इसके अंदर 0 कैलोरीज हैं। वो सारे लोग जो अपनी वजन के मामले में थोड़े से कॉन्शियस हैं और डायबिटीज़ का शिकार हैं, वो सुकराल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। और अब सुकराल जो है वो ड्रॉप्स की सूरत में भी आ गया है, तो 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू 1 चाय के चमचे की चीनी के बराबर। टीस्पून। बिल्कुल। और मैं ये बताती चलूँ यहाँ पर कि जन्नत जो है ना, जन्नत भी जो है ना कुकिंग करती है। कुकिंग नहीं करती है, बेकिंग करती है। ये सारी बच्चियां मेरी कुकीज़ बनाती है, ये केक बनाती है। मेरी भतीजी ईमान जो है वो भी बेस्ट कुकिंग करती है दुनिया में, मुझे लगता है। कुकिंग बच्चियों बेकिंग क्यों अच्छी लगती है, कुकिंग क्यों नहीं अच्छी लगती? और अगर केक कभी बैठ गया और फूला नहीं तो मैं क्या नहीं व्हाट कैन आई डू?
नहीं तो हम खा लेते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, राइट सॉल्ट का मैं आपको बताता चलूँ जी। राइट सॉल्ट जो है वो लो ऑन सोडियम है, यानी अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो प्लीज़ राइट सॉल्ट आप अपनी ज़िंदगी में ले आइए, क्योंकि इट हैज़, बस सूंघ के चेक कीजिएगा रोज़ा। राइट सॉल्ट यही है वो, आपको बहुत कम आना। जवेरिया, ये ख़ास ऐसे शोहरों के लिए है। ऐसे शोरों के लिए और मेरी तरफ से एक बनी को भी गिफ्ट कर दिया। बनी को भी गिफ्ट हो जाएगा भाई। और वैसे वाकई बनी बड़ी मेहनत करता है, सारा दिन इसमें यार, चीखना उसमें कसम से चीखना, तो बड़ा प्यारा बनी के लिए तो तालियां होनी चाहिए। इमाम साहब भी बहुत या अली इमाम के लिए भी तालियां। भाई हमारी पूरी टीम के लिए, जितने डॉक्टर साहब, आमिर शाह, जितने लोग ऊपर बैठे हैं, सबके लिए हम तालियां बजाते हैं और सबको ये गिफ्ट में देते हैं, क्योंकि सबके ब्लड प्रेशर हाई हुए हैं। एक शख्सियत है अफसार साहब, अच्छा, वो और जिन्होंने मुझे मतलब लिख के भेजे हैं वो जो सवाल जवाब ज़ियारात के अच्छा, मकामात के बारे में, बहुत मुश्किल तलफ़ुज़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि कैसे अदा करने और क्या बोलना है। तो उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वाकई इतनी नॉलेज बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। और जी ये खाना जो है तकरीबन किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है? इब्राहिम, बाहर आपसे का पूछ खाना रहे अच्छा हैं। लगता है? इब्राहिम, इब्रार? आपसे हाँ, पूछ रहे हैं। इब्रार कौन है? इब्राहिम इब्राहिम किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है? मामा क्या चीज? चलो बताओ। क्या चीज़ अच्छी लगती है अम्मी के हाथ? पिटाई। क्या चीज अच्छी लगती बड़ा है? ही कमगो बच्चा है जवेरिया। हाँ, राइस राइस। राइस। कौन सा राइस? फ्राइड राइस, पुलाव, बिरयानी? येलो राइस। राइस येलो राइस उधर बताओ ना उनको। येलो राइस। बिल्कुल तुम पे नहीं गया अच्छा, जवेरिया। मुझसे नाराज हो रहे थे कि मुझसे सवाल ही नहीं कर रहा कोई, तो मुझसे तो कोई सवाल अब नहीं वो कर इसी जन्नत आप भाई इससे किए जा ईगो रहे हैं। बहुत बड़ी है। अगर आप उसका मूड है तो आप भाई नहीं इनसे देगा। पूछे ना कि बाबा की कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। यस, ये सच बताता है। एक्चुअली बच्चे फंस गए। पता है नहीं, 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 बच्चे नहीं, कम पूछने क्यों दे। बोल रहे हैं, परेशान है कि तुम दोनों के बीच में कोई भी नहीं बोल सकता। तो परेशान है कि किस वक्त बोले, कौन सा बीच में गैप चलो है वो इब्राहिम बोले। बताओ, बाबा की कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात। अच्छी बता देना बेटा। पापा की बुरी बात मुझे वो लगती है कि वो झूठ बोलता है। और बाप, अरे बाप। अच्छा, अब ये भी वजह बताऊंगी कि ये क्यों वजह हाँ, है। इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि सब? इनका जो आईपैड है वो टूट गया टूट गया है। था और वो एक हफ्ते से गया है बनने के लिए। और आपको रमजानों का पता है, कभी दुकान खुलती है, कभी नहीं खुलती, कभी जाओ तो ये Actually, मसला क्या है। वादा पूरा नहीं किया? ये नहीं रोज वो कहते कल आ जाएगा, लेकिन वो क्या चीज़? बना ही नहीं अभी तक आईपैड। अच्छा 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 कुछ ना कुछ अच्छा। में खराबी ये नाराजगी रहती है। की वजह यही है मेरा ख्याल है। खराबी रहती है, और वो दुकानदार जो कोई ना कोई माशाल्लाह अब से बता अच्छी देता है। बात भी बता दो बेटा। चाइना में तो आईफोन तोड़ रहे हैं लोग। भावे नाम नहीं बोलूंगा ब्रांड का। अच्छी बात भी बता दो भाई। हाँ अच्छी बात है वो जी, वो जो उनने मुझे आईफोन दिया था। उनने मुझे आईफोन दिया था और वापस मैंने ले लिया था। जवेरिया, माशाल्लाह। ये तुम्हारी जो हथकंडे है ना, ये मासूम बच्चों को नहीं छोड़ती तुम्हें। भाई हमारा पहले से तय हुआ था कि ये इसको देंगे और इससे मैं ले लूंगी। ये है असल चेहरा इन माँ बाप का। देखा आपने ये जो मुकम्मल शख्सियत यहाँ जो बैठी है ना, जो खड़ी हुई है, आपको लगता है कि ये बच्चों के माल गस्प करती हो तुम। अल्लाह पूछे तुम्हें जवेरिया है, बच्चे का आईफोन ले लिया, मैं दिलवाऊंगा बेटा तुम्हें, मैं तुम्हारे हुकूक का अलमबरदार, फिक्र ना करो। हाँ, ये मिलेगा तुम्हें आईफोन। हैं क्या कह रहे हो? मुझे यूज नहीं करना आ रहा था। मुझे यूज नहीं करना आता था, कोई इसलिए बात दे नहीं, दिया था इन्होंने। खुद दिया था अपनी मर्जी से। ऐसी बात नहीं। इब्राहिम, हाँ। इमरान अंकल ने इस दफा बहुत पैसे कमाए, वो देंगे तुम्हें। भाई रमजान की बरकतें समेटना और लूटना किसका फर्ज नहीं है? मेरा ख्याल है सबको अल्लाह का करम है। जितना झोली भर भर के वो मुझे दे सकता है। फिर मेरे ख्याल इमरान एक बात कहूँ, यहाँ पे एक साहब बैठे हैं और मैं उनको देखने हुए इतना एंजॉय कर रहे हैं पूरे शो को। वो ऊपर से सबसे ऊपर जिनके सर पे बाल नहीं है, जरा उनको फोकस करें। उनके जो अच्छा, कहकों की मैं आवाजें है ना नीचे तक। हाँ अच्छा, वो मैं समझा था लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन वो तो बैठे हैं। नहीं तो इनको हम इनके हंसने पे कुछ दे देते हैं आज है, हाँ। है, तो इनको इनकी हंसी के ऊपर हम दे रहे हैं कर्शी जामे श्री का गिफ्ट हैम्पर, मैक्स का गिफ्ट हैम्पर और फ्रोटाइल का गिफ्ट हैम्पर। कोलगेट स्माइल है, कोलगेट स्माइल। सबसे ज्यादा जो है ना ये बातों पे हंस रहे हैं हमारी बड़ी देर से। और जी ये तकरीबन लीजिए तैयार, तकरीबन पीछे हो चुका जाओ है। बच्चों, जब अम्मी हाँ, बल्कि आप लोग उधर बैठ जाए, मेरे खाली होने वाला है बस, अब हम इसको निकालेंगे। आ जाओ। आइए। सऊद भाई, आपने कभी बर्तन धुलवाए? जी, जवेरिया के हाथ से लेकर आपने कभी बर्तन धोए? हाँ, आज मैक्स की एक्टिविटी नहीं है ये क्या? तुमने नहीं किया जवेरिया। ये क्या बात हुई? ये आज तुमने तो अपने मैक्स की एक्टिविटी होनी चाहिए थी। ये तो गलत बात है। आज तो मैक्स की है एक्टिविटी जो अपने होनी शौहर पे आई चाहिए तो तुमने कहा कि नहीं है। थी। लेकिन बच गए आज सऊद हैं। वैसे एक बात कहूँ, हम लोग जब अमेरिका जाते हैं ना, तो हमारे घर में ज़ाहिर सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वहाँ तो नौकरों का कोई इतना वो ही नहीं है। तो वहाँ पे ये
برتن بھی دھلواتے ہیں میرے ساتھ, صفائی بھی کرواتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, اگر اپنا ایک گھر میں اور اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ تو میرے خیال سنت بھی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس میں تو ہمیشہ اپنے یہاں والے گھر میں بھی اگر دیکھتا ہوں خراب ہوا ہے کوئی جگہ تو میں خود صاف کر لیتا ہوں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ اس کو مائنڈ مطلب یہ تو ہم نے بہت بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کام عورت تو کرنا چاہیے, یہ کام, جب عورت باہر کے کام کر رہی ہے تو مرد گھر کے کام کیوں نہیں کر سکتا. یہ تو مطلب ایک بات موضوع تو نہیں ہے, لیکن ایک صاحب بہت برتن دھو رہے تھے تو غصے میں کہنے لگے میں اپنی بیگم کو آج چھوڑ دوں گا, اور لائر کے پاس چلے گئے. جب لائر کے پاس گئے تو واپس آ کے خاموشی سے برتن دھونے لگے. بیگم نے پوچھا آپ کیا ہوا, کہنے لگے کچھ نہیں, وہ لائر جو ہے نا فرش دھو رہا تھا. ایک ہی آدمی کو سمجھ میں آیا, مجھے بھی نہیں آیا ویسے آپس کی بات. وہ برتن دھو رہا تھا نا تو بیگم سے تنگ آ کے اس نے کہا آج میں ان کو چھوڑ دوں گا. لائر کے پاس گیا, وہ فرش دھو رہا تھا تو اس نے کہا برتن دھونا ہی بہتر ہے. اچھا جی, یہ تقریباً ہمارا تیار ہو چکا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہماری یہ جو گیسٹ ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی آج, ان کو ہم دیں گے ایکسپریس کی طرف سے, فوڈ فیکٹری دیتے ہیں ہم ان کو, ٹھیک ہے جی, یا تو ایکسپریس کی طرف سے دے دیں یا ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے, جو بھی آپ کے پاس. تھینک یو سو مچ. سبین بیٹھ جائیے پلیز. آج جو ٹائپنگ مسٹیک بھی ہوئی تھی نا, ہے کو پے ہوا تھا آج, ہیمپر کا ہے کا پے ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہے, گفٹ ہیمپر ہی ہے, پیمپر بالکل بھی نہیں ہے جناب. جی یہ تیار ہو چکا ہے, کچھ ہوا بن گیا. ہاں ہم وہ بنا لیں گے, بریک میں بنا لیں گے. مینگو شیک بنانا ہے آج ہم نے, تو یہ ہماری تیار ہو چکی ہے ڈائنامائٹ چکن, اور یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کا ساس جو ہوتا ہے وہ مین ایکچولی ہوتا ہے. تو اس کا ڈائنامائٹ کیوں کہتے ہیں, ذرا اس کا کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ ہے؟ پھٹ جاتی ہے کیا پیٹ میں جا کے, یہ پیٹ پھاڑ دیتی ہے؟ یہ تو جس نے ایجاد کیا وہ بتائے گا. جی چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ جائیں گے. اور جی میں ایک جواب دے دوں. کرسپی ہوتا ہے, میں ایک جواب دے دوں. ڈائنامائٹ کہتے ہیں. ڈائنامائٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر کہتے ہیں یار کھانا تباہی تھا, تباہی, بربادی, مطلب برباد ہو گیا آج تو میں کھانا کھا کے. جی ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عہد رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں جویریہ کو اپنے بالکل گھر کا ماحول ملا. ہمیں تو اپنا گھر ہی لگنے لگا ہے یہ, کیونکہ آپ لوگوں سے ایک اسکرین کے توسط سے ایک عجیب سا رابطہ, ایک عجیب سا تعلق بن گیا ہے. اور جو ہمارے علماء کرام یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ, ہماری ٹیم کے ساتھ اب بالکل ایک فیملی لگنے لگی ہے. آئی ہوپ کہ آپ بھی ہمیں بالکل اپنی فیملی کا حصہ ہی سمجھتے ہوں گے. دیکھ کے اب ہم آپ کے ٹی وی لاؤنج پہ روزانہ جب آتے ہیں تو آپ کو ایک شناسائی سی ہو گئی ہوگی, ہمیں بہتر جاننے کا موقع ملا ہوگا. اور ہم آپ کو جانتے ہیں تھرو آر کوشچنرز, آپ کے سوالوں کے جو ہمارے پاس کالز آتی ہیں, ہمارے واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں آپ کی الجھنیں, آپ کے سوالات جاننے کی ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ایک گھڑی ملتی ہے, ایک موقع ملتا ہے. تو یہ رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا سر آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ کمپلیٹلی, مطلب روزہ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ ہے آج لگ رہا ہے. ابراہیم بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ اس رمضان میں آئے, چھٹی کے دن آئے آپ, سنڈے کو. اس دن بچے اپنا سونا پلان کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا جنت. بہت ہی خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ وہ نعت پڑھی آپ سب نے, میں دوبارہ اس کی تعریف کرنا چاہوں گا, کمال. اور سعود بھائی آپ کو تو ڈبل شکریہ, لیکن ابھی آپ کو جانے نہیں دیں گے. جویریہ آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہیں تک آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے عہد رمضان میں. اس کے بعد پھر جویریہ میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, اور باقی کا جو ہے شو میں سنبھال رہا ہوں. اور عمران اکیلے آزاد گھومتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے جو ہے نا شوہر صاحب کو بھی کہوں گا کہ آج ذرا آپ اس گدی پہ تشریف, آج گدی نشین بن جائیں آپ یہاں سے, اور یہ سیٹس ایکسچینج کریں. باقی آج کا شو جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آج دیکھتے ہیں کہ سعود بھائی کے اندر ہوسٹنگ ابیلٹیز کہاں تک ہیں. کیا اگلے عہد رمضان میں یہ مجھے ریپلیس کرنے والے ہیں یا جویریہ کو ریپلیس کرنے والے ہیں؟ اللہ نہ کرے. ساری جوڑی ایسی سلامت رہے, ہم گھر میں اور آپ یہاں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جویریہ. اللہ حافظ. جویریہ کے لیے اور ابراہیم اور جنت کے لیے بہت ساری تالیاں. جی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور سعود بھائی کیسا لگ رہا ہے یہاں بیٹھنا؟ تھوڑا اونچا لگ رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو واقعی جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں, جو ہوسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو, ہمارے لیے پرائڈ ہے کہ ہم عہد رمضان کی ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کچھ بھی, بہت
کم علم ہیں، مانتے ہیں بہت ہی ادنا سے طالب علم ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ ہماری کوآرڈینیشن میں یا ہماری سمجھ لیں کہ ہم ایک ذریعہ بنتے ہیں، ایک برج بنتے ہیں آپ کے درمیان، علماء اکرام کے درمیان. لوگ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، میں بہت ساری باتوں کا مجھے علم ہوتا ہے، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوتا. بیسکلی جو ہماری ٹیم ہوتی ہے، ہمارے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ سب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. تو میں اپنے آپ کو بہت، میرے لیے فخر کی بات ہے، میرا سارا زندگی کا کام ایک طرف، اور لیکن یہ جو میرے رمضان کے دن ہوتے ہیں جس حوالے سے میں یہاں آپ سے تعارف، میرا اکثر نام لکھا ہوتا ہے نعت خواہ عمران عباس، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا تمغہ مل گیا. اور اب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آج نئے مہمان کون سے ہیں جن کا تعلق صرف دین اسلام سے نہیں بلکہ دنیا کے اور مذاہب سے بھی ہے، جن کی نظر میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اور جو قدر ہے، جو منزلت ہے، وہ کیا ہے. دیکھتے رہیے عید رمضان. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. ناظرین، اب منزل ہے اس سفر کے عشق کی منزل کی انتہا پر بھی لامتناہی ہے، کیونکہ نہ عشق کی انتہا ہے اور نہ اس سفر کی ختم ہونے والی تشنگی ہے. خرط کہتی ہے موتبانہ چل، عشق کہتا ہے بے بکانہ چل. ناظرین، اب ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں. اسی شہر کے لیے رخصت سفر ہیں جہاں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اس بیابان وادی میں کون آئے گا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، لوگ آئیں گے اور دور دور سے آئیں گے، وہی خورشید اور وہی ماہ و انجم. یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے عاشقانہ حرم ایک ہی مقصد کے لیے دنیا بھر سے چلے آتے ہیں. یہ مقام عمل کا نہیں، سراسر عشق کا ہے. اسی لیے مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کعبۃ اللہ کی دید ہو اور شدید ہو، دل مدینہ میں رکھ کر اب جانا ہی ہے. آج احرام باندھ رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں وہ عہد رسالت کا دور، قرون اللہ کا دور، اور پھر میری نگاہیں، اور جہاں میری نگاہیں رکتی ہیں وہ 1 صدی پرانا دور، جب آسائشیں ہی نہ تھیں. بلکہ آسائش، کیسی آسائش؟ دشوار راستے اور اونٹوں اور جانوروں پر سفر، یا پھر بحری راستوں کی سمندری راہ گزر. اس وقت آسائشیں نہیں تھیں لیکن ہمتیں بلند تھیں. لوگ آنا آنا جمع کر کے بیت اللہ اور شہر رسول اللہ کا رخ کرتے تھے. اب جب آسائشوں کی فراوانی ہے تو ہمتوں میں تن آسانی ہے. ہمتیں گویا مرجھا سی گئی ہیں، اس لیے ایمان بھی متزلزل لگتا ہے. لیکن پھر بھی ایمان کا گلشن ہے، اس لیے امید بہار رکھ کر عمرے کا احرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں،
यहाँ आने के लिए मालो मता नहीं, सिर्फ तड़प चाहिए। तड़प वो जो अर्श को हिला दे, तड़प ऐसी जो ईमान जगमगा दे, तड़प ऐसी कि दिल कहे कि यही उम्मीदों का आखिरी सहारा है, तड़प ऐसी कि दिल कहे कि बस उम्मीदों का आखिरी सहारा यही है। नाजरीन, मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को सुनाऊं। एक बुजुर्ग जिन्हें हज पर जाने की आरज़ू थी, वो अल्लाह से लो लगाए हज पर जाने के लिए मुंतज़िर रहते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल को और कुंदन बना दिया। इसीलिए मसाइल व मसाइल के बावजूद हज पर जाने से कासिर रहते थे। एक दिन एक साहिब उनके पास आए और उनसे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 7वीं बार हज के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग रोने लगे और उन्हें दुआएं देकर रुखसत किया। वो साहब जब आज़िम हज हुए तो उन्हें हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, हमने इस बार तमाम हाजियों का हज उन बुजुर्ग साहब की तड़प के बाइस कबूल कर लिया। वो साहब जो हज पर गए थे वतन वापस लौटे तो उन बुजुर्ग के पास गए और लिपट कर ज़ार कतार रोने लगे और कहा, हजरत, मेरे सारे हज रख लें और मुझे बस अपनी तड़प दे दें। वो बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, एक शख्स अपने तमाम हज दे रहा है। तो उस शख्स ने कहा, हजरत, आपकी तड़प ने ही इस बार तमाम हाजियों के हज को कबूल बनवाया। नाजरीन, बस यही तड़प है। अल्लाह ऐसी ही तड़प हम सब के दिलों में डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन।